Back with another episode of tryhackme.com tutorial. We are doing red team engagement in today's session. Thank you very much for the comments and support that you guys are providing me. Thank you very much, guys. Really appreciate your efforts and support there. At the end of this stream, I have a surprise for you, as always. We will touch on the OSCP certification path that we will be introducing on this channel. So there will be two parts now. One is the Try Hack Me rooms that we'll be doing every other day, every 3 days in a week, and then 3 days in a week for the OSCP as well. We'll start from the scratch. More of this later on once we'll reach to the end of this stream, guys. Thank you very much once again, and let's continue. Just before I do that, let me copy paste my stream link on the Discord channel so you guys can chit chat with me live and also on my social media so you guys can come and see what we are doing for today. Okay, let me check quickly my voice is okay or not. Okay, it's going good. Let me place a little bit here and let me check if yeah, I think it's going good. Okay, so in today little tutorial, we gonna study about the red team engagements. As you know that previously we had done the previous room, which is, if I can go back and see which path we are following, we're following this red teaming, and we already have done this red team fundamentals in our previous stream. You can check it out. It's our day one stream. It will be in the same playlist that we have. And now we're going to the red team engagement. Our target was to do it on at least until 22nd, but I think there is a lot to cover, and I think we'll not be able to do it because we are doing just 1 hour per day, and it would need officially 48 hours to do that. Well, let's see what we can do in this one. Okay, so with no further ado, red team engagement. Learn the steps and procedure of the red team engagement, including planning, frameworks and documentation. तो हम ये सारा कुछ लर्न करेंगे. रेड टीम की एंगेजमेंट कैसे स्टार्ट होती है, रेड टीम का अगर कोई टास्क मिले तो कैसे उन्होंने स्टार्ट करना है, उन्होंने प्लानिंग कैसे करनी है, अगर कोई फ्रेमवर्क है, बने बनाए प्रोसीजर्स अगर हैं तो वो कैसे करने हैं, और डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें कैसे करनी है, तब ताकि बाद में हम प्रूव कर सकेंगे ये चीज़ हमने की है. टास्क 1. अच्छा, टास्क कितने टोटल टास्क हैं? 10. लेट्स सी कि हम कितनी देर में इसको फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन. टास्क 1. द की टू सक्सेसफुल इंगेजमेंट इज़ वेल कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड कम्युनिकेटेड थ्रू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व. ठीक है जी. रेड टीम की जो एंगेजमेंट है वो वेल कोऑर्डिनेटेड होती है, प्लानिंग करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन सबके साथ करते हैं कि हमने करना क्या है. दिस रूम विल फोकस ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द रेड टीम एंगेजमेंट एंड प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ए कैंपेन फॉर ए रेड टीम एंगेजमेंट. ठीक है जी. अच्छा जी. रेड टीम एंगेजमेंट कम इन मैनी वराइटीज़ इंक्लूडिंग टेबल टॉप एक्सरसाइज. टेबल टॉप में एक ही टेबल के ऊपर रेड टीम और ब्लू टीम जो है वो दोनों बैठ जाती हैं, वो आपस में गोल डिसाइड कर लेते हैं कि करना क्या है, तो फिर उसके बाद जो है एक्चुअल एक्सरसाइजें स्टार्ट करते हैं. एडवर्सरी एमुलेशन. इसमें ये होता है कि यार तुम जो है ऐसे ही बिहेव करो जैसे कि कोई रियल हैकर आके ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को या आपकी सर्विसेज को अटैक कर रहा, तो उसी तरह से आप करो. That means they will go through the reconnaissance and whatever, all the cycle that they have. Physical assessment.
इस फिजिकल असेसमेंट में यह है कि अगर आपका कोई डाटा सेंटर है, आपके कोई एसेट्स पड़े हुए हैं और आपने सिक्योर किया हुआ है, तो वो कैसे आप उसको सिक्योर करेंगे, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। देर आर मैनी फ्रेमवर्क्स आउट देयर। और फिजिकल अगर आपको सिक्योर करना पड़ेगा, दैट मीन या तो आप ताले में रख लें या फिर आप बायोमेट्रिक उस पर लगा लें, या बाकी जो चीज़ें हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, कोई गार्ड वहाँ पे बिठा दें जो कि देखे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ओके, फेशियल रिकग्निशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी इस फिजिकल असेसमेंट के अंदर आती हैं। ओके जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव: understand components and functions of red team engagement. Yeah, okay. Learn how to properly plan an engagement based of needs and resources available, and TTPs. TTP हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था, tactics, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ओह, मैं भी भूल गया लेकिन याद है भाई, भाई को याद है, भाई ने जो पढ़ा दिया वो भाई को याद हो जाता है। अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इन अकॉर्डिंग्स टू द क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे राइट करनी है क्लाइंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वो भी सारा सारा हम देखेंगे। दिस रूम रिक्वायर्स नो प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। ओके, दैट्स गुड फॉर अस, कंप्लीटेड। अच्छा जी, स्ट्राइक वन पे दोबारा चले गए छुट्टियां दरम्यान में कर लेते हैं तो हमारी स्ट्राइक जो है वो इधर ही अच्छा जी, टास्क टू डिफाइनिंग स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। इंगेजमेंट कैन बी वेरी कम्प्लेक्स एंड ब्यूरोक्रेटिक। डिप्लोमेसी ब्यूरोक्रेटिक आ जाती है, यार करना क्या है क्या नहीं करना वगैरह वगैरह वगैरह। ये डेफिनेशन ऊपर आती है, रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ रनिंग ए ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। द की टू सक्सेसफुल एंगेजमेंट इज क्लियरली डिफाइंड क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। या इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि करना क्या है। Client objectives should be discussed between the client and the red team to create a mutual understanding between both parties of what is expected and provided. ठीक है, दोनों पार्टी को पहले ही पता होना चाहिए कि अगर यार हम कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग या कोई एक्सप्लॉयट, अगर हमें कोई रियल एक्सप्लॉयट मिल गया और उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है मैं इसको प्रोडक्शन में कर दूँ तो क्या उसके आ सकते हैं, नताइज आ सकते हैं, क्या रिजल्ट आ सकते हैं, तो उसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी है कि करना क्या है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है, सेट ऑब्जेक्टिव्स आर द बेसिस फॉर द रेस्ट ऑफ द इंगेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग। वो कहते हैं कि आपको यार फ्री हैंड है, जो मर्जी करो, अगर कोई एक्सप्लॉइट है तो एक्सप्लॉइट करो, लेकिन हमारा डाटा नहीं डैमेज होना चाहिए। अगर आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो विंडोज़ में या लाइनिक्स में तो कर दो, बाद में बता देना किधर हमारी वीकनेस है, हम उसको प्लग कर लेंगे। Without clear and concrete objectives and expectations, you are preparing for a very unstructured and unplanned campaign. जब ऑब्जेक्टिव्स का नहीं पता होगा तो फिर अनप्लैंड होगी, जिसका मतलब है कि वो फिर टाइम ओवर रन भी होगा वगैरह वगैरह वगैरह। बेसिक रूल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई होंगे। ऑब्जेक्टिव सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द इंगेजमेंट। तो प्रोजेक्ट में भी आपको पता है, सेट गोल्स आप डिफाइन करते हैं कि यार ये आउटकम होगी इसकी, तो इसी इधर भी वही चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। When assessing a client objectives and planning the engagement details, you will often need to decide how focused the assessment is. ठीक है, engagement can be categorized between a general internal network penetration test और focus adversary emulation. Adversary emulation जो कि पहले हम बता चुके हैं, अभी इसकी definition में पढ़ेंगे। A focus adversary emulation will define a specific APT, advanced persistent threat or group to emulate within an engagement। ठीक है, this will typically be determined based on the groups that target the company's particular industries। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस इंडस्ट्री है तो उसमें रैंसमवेयर वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसी तरह से जो है उसी तरह के अटैक करेंगे। सिमुलेशन है ना, इमुलेशन। सो बेसिकली उसी तरह से अटैक करने की कोशिश करेंगे जैसे कि एक रियल फो या एडवर्सरी जो है वो अटैक करेगा। APT38 को देख लेते हैं इधर क्या है। एन इंटरनल एंड नेट और नेटवर्क। अच्छा, ये तो उसने डाउनलोड करने की कोशिश कर दी। अच्छा, इसको हम जो है वो डाल देते हैं ट्राई हैकमी में, और उधर से हम खोल लेंगे। ओके ओके, an internal or network penetration test will follow a similar structure but will often be less focused or
use more standard TTPs. Okay. Specifics of the approach will depend on the case by case basis of the engagement defined by the client objectives. Client जो कहेगा उसी के साथ से काम करना है. केस बाय केसेस डिफरेंट हो सकता है. कुछ क्लाइंट आपको फ्री हैंड देंगे, कुछ क्लाइंट कहेंगे कि नहीं जान, सिर्फ आपने ये वाला एरिया टेस्ट करना है, बाकी जो है ऑफ लिमिट्स है. Client objectives will also affect the engagement general rule of engagement and scope. These topic will be expanded upon in task 6. अभी भी expand करना ठीक है. Client objectives only set basic definition of the client's goal of the engagement. The specific engagement plan will expand upon the client objectives. ठीक हो गया. क्लाइंट सिर्फ आपको बताएगा कि यार ये सिस्टम करना है, और उसके ऊपर जो आपने प्लान बनाना है ना, वो बेसिकली क्लाइंट की कही हुई बातों के ऊपर बनाना है, जो कि क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं. डिटरमिन द स्पेसिफिक्स ऑफ द एंगेजमेंट प्लान विल बी कवर्ड लेटर विद इन द रूम. ठीक है जी. लेट्स कंटिन्यू. द नेक्स्ट की स्टोन टू ए प्रिसाइज एंड ट्रांसपेरेंट एंगेजमेंट इज अ वेल डिफाइंड स्कोप. आपने स्कोप डिफाइन करना है, क्या करना है बेसिकली, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए या वैसे जो है एक्सप्लॉयट करने के लिए. तो वो आएगा स्कोप के अंदर. स्कोप है बेसिकली कि वो डिफाइन करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं. वन मोमेंट गाइस. अच्छा, तो स्कोप the scope of engagement will vary by organization and what their infrastructure and posture look like. A client scope will typically define what you cannot do or target. ठीक है. स्कोप के अंदर आप बता देगा कि यार आपका टारगेट क्या है. फॉर एग्जाम्पल उनकी 10 एप्लीकेशन होगी लाइव, और वो कहेंगे कि सिर्फ ये 2 एप्लीकेशन जो है आप टारगेट कर सकते हैं, तो वही बेसिकली आपका स्कोप है. 2 एप्लीकेशन विल बिकम योर स्कोप. It can also include what you can do or target, while client objectives can be discussed and determined along with the providing team. A scope should only be set by the client. In some cases, the red team may discuss a grievance of the scope if it affect an engagement. Okay. They should have a clear understanding of their network and the implication of an assessment. ठीक है. ठीक है. अगर स्कोप कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से कुछ एंगेजमेंट जो है अफेक्ट कर रही है, तो वो फिर रेड टीम उनके साथ खोल देगी कि यार ये चीज़ें जो है ना आउट ऑफ स्कोप होनी चाहिए. और इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन सिस्टम पे करवा रहे हैं जो कि लाइव है, और अगर हम ये सीक्वल इंजेक्शन रियल अटैक करने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन में पकड़ा गया तो ये डाटा आपका ख़राब हो सकता है. तो आपने स्कोप डिफाइन करना है कि आप जो है विदाउट इन्वेसिव जो है वो इन्वेसिव अटैक जो है आप स्कैन करेंगे. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द स्कोप. तो ये फिर आपने उनको बताना है ग्रीवेंसेस के क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. दे शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेटवर्क एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द असेसमेंट. इम्प्लीकेशन ऑफ असेसमेंट से मुराद है कि अगर कोई आईडीएस आईपीएस वगैरह वगैरह लगाए हुए हैं तो अलर्ट्स जो हैं वो चले जाएंगे, रिलेटेड और लॉग्स भी जनरेट होंगे. तो इसका मतलब ये है कि आपको रेलिवेंट टीम्स को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आप कर रहे हैं. नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि यार करते जाओ, लेट्स सी कि हमारी टीम ने क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ. सो दिस कैन आल्सो बी अ केस. The specifics of the scope and the wording will always look different. Below is an example what very I don't know what does that verbiage may look like within a client scope. No exfiltration of the data. देखा, डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कहते हैं कि नहीं भाई ये आपने इसको ना छोड़ दें, बाकी विल सी. प्रोडक्शन सर्वर्स आर ऑफ लिमिट्स. प्रोडक्शन सर्वर्स ही ऑफ लिमिट्स. आप क्या करना, अब उनका कोई इंटरनल नेटवर्क है, वो कहते हैं कि ये भी ऑफ लिमिट है. 10.0.3.8 बाई 18 10.00.820 इज़ इन स्कोप. ठीक है. हो सकता है कि ये कोई एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो या डेटाबेस वगैरह वगैरह, जो कि वो कहते हैं कि स्कोप में नहीं है, और ये कहते हैं कि यार ये डीएमजी में पड़ा, चलो ये स्कोप में स्कोप के अंदर डीएमजी वगैरह सारा कुछ आगे पढ़ेंगे. सिस्टम डाउन टाइम इज़ नॉट परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्जांपल अगर आपने डीडॉस अटैक लगा दिया है तो सिस्टम तो आपका कुछ देर बाद वो चला जाएगा डाउन टाइम में.
वो कहता है कि डाउन टाइम नहीं करना, आपने मुनासिब रेट के साथ जो है वो चीज़ें कर सकते हैं. एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ P2 इज प्रोहिबिटेड. ये भी कोई डिवाइस है या कोई चीज़ है जो जिसको हम उन्होंने P2 किया हुआ है. एक्सफिल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड. ओके, गुड इनफ. When analyzing a client's objectives or scope from a red team perspective, it is essential to understand the more profound meaning and implications. Yep. When analyzing, you should always have a dynamic understanding of how your team would approach the problems, objectives. If needed, you should write your engagement plan or start them from only a bare reading of the client objectives and scope. हाँ, तो जब आपने प्लान बनाया तो आप ऑब्जेक्टिव और स्कोप को सामने रखें और अपना प्लान बनाएं. रीड द एग्जाम्पल क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन. ओके, ठीक है जी, करेक्ट आंसर. Below is an example of client objectives of the mature organization with a strong security posture. Okay. Example 1, global enterprises. ठीक है जी. Global enterprises. 1 minute, guys. Yeah, nobody joined. Okay, no problem. Yeah, there is one guy who's viewing. Yeah, welcome, guys. You can write your name in the chats if you want to talk or ask question, and you can also join my Discord channel, bro. Identify system misconfiguration and network weakness. Yeah, focus on the interior system. जो internal system है उनको focus करो. Determine the effectiveness of the endpoint detection and the response system. ठीक है जी. जो एडवर्ट डिटेक्शन लगाया हुआ रिस्पॉन्स सिस्टम लगे हुए हैं उनकी इफेक्टिवनेस हमने जाननी है. फॉर एग्जांपल आपने कोई अटैक स्टार्ट किया तो लेट्स सी के जो अलर्ट्स हैं वो जनरेट हुए हैं कि नहीं हुए. वैल्यूएट ओवरऑल सिक्योरिटी पॉस्चर एंड रिस्पॉन्स. SIEM, security information event management system that is used to aggregate security information in a form of logs, alerts, artifacts and events into a centralized platform that would allow security analysts to perform near real time एनालिसिस ड्यूरिंग सिक्योरिटी मीटिंग. ये रियल टाइम नहीं होता. ये लॉग्स को ट्रैवल करते हुए फिर लॉग्स को जो है वो बेसिकली कंज्यूम करते हुए इतना टाइम लग जाता है कि रियल जो है ना हैकर वो अपना काम फिनिश करके चले भी गए होते हैं, उनके बाद में सिस्टम अलर्ट जनरेट करते हैं. अनलेस कि रियल टाइम आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट की हो, IPS IDS वगैरह, अगर वही बता दें कि यार कोई अटैक आ रहा है और ये मलिशियस सेगमेंट कर रहा है और जो कम्युनिकेशन वो भी इंक्रिप्टेड है और इनकोडिंग वगैरह यूज़ हुई है वगैरह वगैरह, बड़े ज़्यादा तरीके हैं से करने के. एंड डिटेक्शन मेयर्स, ये वो मेयर करने की कोशिश करना चाहते हैं. रेमेडिएशन से मुराद ये है कि अगर कोई अटैक आपने किया है और वो बाईपास कर गया आपके आइडियाज़ को, तो उसकी रेमेडी क्या होगी, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ है. सेगमेंटेशन ऑफ DMZ एंड इंटरनल सर्वर्स, ये हमने चेक करना है. कोई DMZ में आके इंटरनल सर्वर को तो नहीं एक्सेस कर सकता. कोई इंटरनल सर्वर, चलो इंटरनल सर्वर तो वैसे DMZ में कर सकते हैं, लेकिन DMZ से इंटरनल सर्वर आप यूजुअली नहीं जाते. और इवन आपने इंटरनल से DMZ जाना है तो दरमियान में एक फायरवॉल है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी. कंट्रोल से मुराद है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो मेंटेन करेंगे, किसने कौन सा होस्ट जो है किस होस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. यूज ऑफ वाइट कार्ड इज परमिटेड डिपेंडिंग ऑन द डाउन टाइम एंड लेंथ. राइट. evaluate the impact of the data exposure and exfiltration. अच्छा जी, जो इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है उसका डाटा एक्सपोजर और एक्सफिल्ट्रेशन आपने डिफाइन करनी है. जैसे स्कोप क्या है, सिस्टम डाउन टाइम इज नॉट परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, एनी फॉर्म ऑफ DDoS और DOS इज प्रोहिबिटेड. ठीक है, ये है आपका स्कोप. यूज ऑफ एनी हार्मफुल malware इज प्रोहिबिटेड. दिस इंक्लूड ransomware एंड अदर वेरिएशन. कोई भी आप इस तरह का यूज़ नहीं कर सकते. एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ P2 इज प्रोहिबिटेड. यूज आर्बिट्रेरी एक्सफिल्ट्रेशन डाटा. अच्छा, P2 एक टेक्निक है, आई थिंक यहाँ कोई चीज़ है, टूल है जिसकी वजह से आप ये डाटा एक्सफिल्ट्रेशन कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, विल सी. Attacks against system within 10.0.4.0.22 are permitted. ठीक है जी. Attacks against the system within the 10.0.12.0 are prohibited. ठीक है, परमिटेड एंड प्रोहिबिटेड है, थोड़ा
सेम ही लग रहा है, लेकिन आपने इसमें डिफरेंस करना. Bean Enterprises will closely monitor interaction with the DMZ and critical production systems. Any interaction with static dot Beth Bethy change dot XYZ is prohibited. Okay, any interaction with static dot global enterprise dot THM is prohibited. Okay. What is this CDR range which is permitted? Yeah, copy paste. Is the use of wildcard permitted? Yes, they already said yes. Are you permitted to access? नहीं, इन्होंने खुद prohibited का है, तो इसका मतलब है कि no, we cannot do that. चलो जी, task to complete. अब आ गया जी रूल ऑफ एंगेजमेंट. ठीक है, इन्होंने कोई टास्क फाइल हमें दी है, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं. जी, जी. तो एक दफा देख लेंगे खोला क्या है. सॉरी गाइस, नींद आ रही है. टिक टिक टिक. ये चीज नॉट ट्राई हैक मी. एग्जेक्टिव समरी, ये है सारी. अच्छा, एक ही पेज है, पढ़ लें एक दफ़ा. The rule of engagement document the approvals, authorizations, and critical implementation issues necessary to execute the engagement. Signing off the ROE constitutes acknowledgement and approval of the customer, system owner, and the red team for the red team's authorities in execution of engagement. The objectives include monitor security posture and response, focus on internal system and insider threats, threats, assess the response of the defense team. ठीक है, assess ability to move literally through internal infrastructure. ठीक है, employ physical penetration testing to assess on-site security posture. ठीक है, exploit restriction, use of the white cards are strictly prohibited. हैं, ये तो चेंज नहीं कर दिया, पहले तो कुछ और था. Any form of DDoS or DOS is prohibited. Attacks against any system within 192.168.1.024 is prohibited. Internal system authorized target scope 10.0.4.022 और ये और एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं. रिकॉनेसेंस, एक्सेस टाइप, फिशिंग, फिजिकल एंड सोशल इंजीनियरिंग, पोजिशनिंग, अज्यूम ब्रीच सिनेरियो एंड इम्पैक्ट. लो जी, आगे बढ़ते हैं. रूल ऑफ एंगेजमेंट ROER, legally binding outside of the client objectives and scope with further detail of the engagement expectation between both parties. This is first official document in the engagement planning process and require proper authorization between the client and the red team. The document often acts as a general contract between two parties, an external contract or other NDAs, non-disclosure agreement. NDAs तो हर कोई करता है. Can be used. Okay. The format and wording of ROE are critical since it is legally binding contract and sets clear expectation. Okay. Each ROE से मराद है rule of engagement. Structure will be determined by the client and the red team and can vary in content length and overall sections. Below is a brief table of standard sections you may
सी कंटेंड इन द आर ओ ई। ठीक है जी। एग्जैक्टिव समरी हमने देखा अभी, जो एग्जाम्पल के तौर पे हमने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है। एग्जैक्टिव समरी our our arching summary of all contents and authorization within the ROE document, rule of engagement document. Purpose defines why the ROE document is used. Okay. References, any references used throughout the ROE document, HIPAA, ISO वगैरह वगैरह, कि हम किस फ्रेमवर्क को टारगेट कर रहे हैं। HIPAA जो है, आई थिंक is usually come for healthcare. HIPAA. Scope, statement of the agreement to restrictions and the guidelines, definitions, definition of technique terms used throughout the ROE document. Rule of engagement support agreement defines the obligation of both parties and general technical expectation of the engagement conduct. Okay, the provisions define exceptions, addition information from the rule of engagement. ठीक है जी. It's law. Yeah, HIPAA is a law, right? Yeah, HIPAA is a law. Yeah. All right. It is, I think, Akash, right? You are entered through a different username, bro. Okay, resolution of issues, points of contact contains all essential personnel involved in an engagement. ठीक है जी. Authorization statement of authorization for the engagement, approval, signature for from both parties approving all subsections of the preceding document. Appendix, any further information from preceding subsections. ओके. लेकिन जो हमने देखा है उसके अंदर तो थोड़ी तीन चार चीज़ें इन्होंने डाली हैं। और लेट्स ये देखें ना, एक्टिविटीज़, ऑथराइज, टारगेट स्कोप, एक्सप्लिसिट रिस्ट्रिक्शंस एंड दैट्स इट, एग्जेक्टिव समरी, उसी के अंदर सारी चीज़ें एक पेज effectively. When analyzing the document, it is important to remember that it is only summary. Its purpose is to be a legal document. हाँ जी, legal document है ये. And future and more in-depth planning are required to expand upon the ROE and client objectives. ठीक है. For this, we will use a short and document adapted from this guide. चलिए. ये है रेड टीम का एंगेजमेंट. आई लव रेड टीम्स. ये है फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल टारगेट का नेम क्या है, कस्टमर, ABC इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, डेट है, एग्जेक्टिव समरी ये है, एंगेजमेंट रूल. अच्छा जी. ऑब्जेक्टिव 1 2 3, सेक्शन 1 2 3, IP रेंज, डोमेन, URL, एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, बाकी सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी. तो इसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. अच्छा जी. डाउनलोड सैम्पल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डाउनलोड कर लिए. हाउ मैनी explicit restrictions are specified? How many explicit? एक दो तीन तीन. I'll put it 3. Submit. ये what is the first access type mentioned in the document? Access type. What is the first access type? Phishing. ये रहा. Copy. Paste. ठीक है. Is the red team permitted to attack 192.168.1.0? I think no, they are not. This is the restriction, prohibited 1.024. No, they are not. It is prohibited. Explicit. Okay, जी. Campaign planning.
Actually, campaign planning may parallel to this task, we have primarily focused on engagement planning and documentation from the business perspective. Okay. Campaign planning uses the information acquired and planned from the client objectives, ROE, and applies it to various plans and documents to identify how and what the red team will do. Okay. Each internal red team will have its methodology and documentation for campaign planning. Okay. We will be showing one in-depth set of plans that allows for precise communication and detailed documentation. The campaign summary we will be using consists of four different plans varying in depth and coverage adopted from a military operations document. Each plan can be found in the table below with a brief explanation. चलिए मिलिट्री का कोई गाइडेंस है गवर्नमेंट का is hey we're back. ठीक है जी. टाइप ऑफ प्लान एंगेजमेंट प्लान ऑपरेशन प्लान मिशन प्लान रिमीडिएशन प्लान. ठीक है. एंगेजमेंट प्लान करना क्या है एंड ओवर आर्चिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द रेड टीम कौन ऑप्स रिसोर्स एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट टाइमलाइंस. ठीक है. ये प्लान कंटेंट्स है. ऑपरेशंस प्लान an expansion of the engagement plan goes further into the specific of each detail operator non information responsibilities. ठीक है. करना क्या है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की है. मिशन प्लान एक्सट्रैक्ट कमांड्स टू एक्सट्रैक्ट क्या यार एग्जैक्ट कमांड्स टू रन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द एंगेजमेंट. अब जब एक्चुअल मिशन एग्जीक्यूट करना है ये उसका है कमांड टू रन time objectives, responsible operators, etc. Remediation plan define how the engagement will proceed after the campaign is finished. Report remediation consultancy report में जो भी bugs या issues पकड़े हैं वो remediation consultancy में या consultation में वो बताएगा कि इसको कैसे आप हल कर सकते. Another example of the campaign plan is the red team guide engagement checklist. चलिए. तो ये कोई रेड टीम का बताया हुआ है कि गेट ए कॉपी वगैरह वगैरह. अच्छा जी. चेकलिस्ट द चेकलिस्ट फ्रॉम हेयर act as a more generalized approach to planning a campaign and information needed. ये क्या है बस. अच्छा तो ये है रेड टीम चेकलिस्ट जो बेसिकली रेड टीम डॉट गाइड के अंदर ही उन्होंने दिया है और ये सारी चेकलिस्ट में आते हैं. और ये यूआरएल बेसिकली आपके टास्क में भी होगा. मैं वैसे भी चैट में डाल देता हूँ जस्ट फॉर एवरीबॉडी एल्स टू नो. अच्छा जी. Acts as a more generalized approach to planning a campaign and information needed. ठीक है. In the upcoming tasks, we'll go further in depth with these plans, documentation, and specifics of each as we take a deep dive into campaign planning. ठीक है जी. तो हमने ऑलमोस्ट 4 टास्क तो इसके कर दिए हैं. 5वें टास्क पे जो है हम दोबारा वापस आएंगे. गाइस अभी तक के लिए इतना ही और जैसे ही हम कुछ देर में 30 मिनट्स में वापस आएंगे यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम एंड विल सी यू इन 30 मिनट्स.